یہ وہ لڑائی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پورے برِ صغیر کی تاریخ بدل دی تھی، جب محمود غزنوی اور راجہ جے پالا پشاور کے قریب ایک میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ ہندو شاہی اور غزنویوں کے درمیان لڑائی کا یہ فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس لڑائی میں ایک طرف جے پالا کا انتقام تھا تو دوسری طرف محمود غزنوی کا ایمبیشن۔ اس لڑائی کے نتیجے کو دیکھنے کا ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ اور اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ اس لڑائی میں اصل میں کیا ہوا تھا، جانیے اس ویڈیو میں۔ پنجاب اور ہندوستان کی تاریخ میں کچھ مواقعوں کو گیم چینجر کہا جاتا ہے۔ جے پال اور محمود غزنوی کے درمیان ہونے والی یہ لڑائی تاریخ کے انہی موڑوں میں سے ہے جس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس لڑائی کے حوالے سے ہر ایک کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن ہے۔ یہ کیسے ہوئی، اس کی آؤٹ کم کیا تھی، کس کردار نے کیا کیا، ان تمام باتوں پر ابھی بھی بحث ہوتی ہے اور ہر کوئی اس لڑائی اور اس کی تاریخ کو اپنے نظریے کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت تاریخ کے سورسز محدود تھے، حقائق بھی اتنے کلیئر نہیں تھے، اسی لیے اکثر ہمارے لیے ان ڈیبیٹس میں فیکٹ اور فکشن کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس لڑائی کے آغاز سے لے کر اختتام تک کی بات کریں اور دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل سورسز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جے پال اور محمود غزنوی کی لڑائی سے پہلے، لڑائی کے وقت اور بعد میں کیا ہوا تھا۔ تو آئیے اس لڑائی میں سے فیکٹ اور فکشن کو الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ کس طرح سے ہندو شاہیوں اور غزنویوں کا جو کانفلکٹ تھا وہ شروع ہوا تھا۔ یہ ایک دوسرے کی نیبرنگ سٹیٹس تھیں اور دونوں کے درمیان بارڈر ایریا سے شروع ہونے والی ٹینشن پہلے غزنی اور پھر کابل کے کنٹرول تک پہنچ گئی اور پھر یہ بھرپور ہاسٹیلیٹیز میں تبدیل ہو گئی۔ سبکتگین نے چرخ اور غزاق کی جنگ کے بعد اپنا کنٹرول بہت بڑھا لیا تھا۔ لمغان کی لڑائیوں کے بعد پشاور اور لمغان کے درمیان علاقے اب اس کے پاس تھے۔ غزنویوں اور ہندو شاہیوں کے درمیان جنگوں کے اس دور کے حوالے سے ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سبکتگین اور جے پالا کے درمیان ان جنگوں کی آؤٹ کم ہندو شاہیوں کے لیے کچھ اچھی نہیں تھی۔ حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور ہندو شاہیوں نے اپنی کافی ٹیریٹری کنسیڈ کر دی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ایک طاقتور سٹیٹ تھے۔ جے پالا نے اپنی سلطنت کی ایکسپینشن کو اب ایسٹ ورڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بیٹے آنند پالا کی کمانڈ میں بھیجی گئی فوج نے سموتلا کے قریب لڑائی میں راجہ چندرت کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے اپنی امپائر میں شامل کر لیا تھا۔ وہ لاہور کا راجہ بھی بن گیا تھا۔ جے پالا کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ غزنویوں سے جنگوں میں شکست کے باوجود اس نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے علاقے ان سے واپس لینا چاہتا تھا، لیکن سبکتگین کی بطور جنرل بریلینس اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ لیکن پھر حالات نے اسے ایک اور اپرچونٹی دے دی۔ 997 میں غزنی کے تخت پر بیٹھے سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے جانشینوں کے درمیان اقتدار کے لیے کھینچا تانی شروع ہو گئی، جس میں اس کا بیٹا محمود کامیاب رہا اور دیگر دعوے داروں کو شکست دے کر وہ مارچ 998 تک تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ محمود غزنوی کا اصل نام ابو القاسم محمود اور خطاب یمن الدولہ تھا۔ جب سبکتگین کی وفات ہوئی تو اس وقت محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا اور اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ محمود نے ایک ینگ ایج سے ہی سبکتگین کے کورٹ میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ 988 میں اس نے لمغان کی پہلی لڑائی میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ خراسان کی کیمپین میں بھی شریک ہوا، لیکن اس کے باوجود سبکتگین نے اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین بنا لیا۔ محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے اپنے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں محمود نے اپنے ایک اور بھائی ابو مظفر کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی اور غزنی پر حملہ کر دیا۔ اس نے لڑائی کے بعد اسماعیل کو شکست دے دی اور یوں وہ غزنی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جے پالا کے لیے یہ ٹرانزیشن ایک ایسا موقع تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ وہ کابل اور غزنی پھر سے ہندو شاہیوں کے پاس واپس لے آئے۔ وہ ان موقعوں کی تلاش میں اس سے پہلے بھی تھا۔ مجموع الانسب میں لکھا ہے کہ لمغان کی جنگ کے بعد 990 یا 991 میں جب سبکتگین نے ایک دفعہ کسی بات پر ناراض ہو کر محمود کو قید میں ڈال دیا تو جے پالا نے دونوں باپ بیٹے میں اس ناراضی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ اس نے محمود کو، جو اس وقت ایک نوجوان شہزادہ تھا، خط لکھا اور کہا کہ تمہارے باپ نے تمہاری قدر نہیں کی،
अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने बंदों को भेजकर तुम्हें कैद खाने से निकलवा लेता हूँ और तुम मेरे पास आ जाओ। मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे बाप से बढ़कर दौलत और फौज दूंगा। जयापाला महमूद को अपने बाप के खिलाफ एनकरेज करना चाहता था, लेकिन महमूद को जयापाला की यह चाल समझ आ गई। उसका जयापाला को दिया गया जवाब बड़ा सख्त था, जिसमें उसने लिखा कि मेरा बाप मेरा आका है और मेरा लीडर यानी सैयद है। अगर वो मुझे मारना भी चाहता है तो वो हुक्मरान और काजी है। मैं जब भी जेल से छूटूंगा तो मैं फौज लेकर तेरे ही मुल्क की तरफ आऊंगा। अब गजनी का सुल्तान बनने के बाद महमूद के इरादे कुछ ऐसे ही थे। वो गजनी की एक्सपेंशन पर बिलीव करता था और उसने तख्त पर बैठते ही सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों पर पहले अपना कंट्रोल मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसका इरादा गजनी की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने का था। उसने सल्तनत से बाहर हमलों का फैसला किया। ये हमले उस वक्त की वॉर इकोनॉमी का हिस्सा होते थे और किसी भी सल्तनत के लिए एक प्रॉफिटेबल यानी मुनाफा बख्श वेंचर हुआ करते थे। जफर जुल्बतकानी, जिसने तारीख यमनी की ट्रांसलेशन की है, उसका लिखना है कि महमूद गजनवी ने यह फैसला किया था कि वो हर साल सल्तनत से बाहर एक हमला करेगा और इन हमलों का आगाज उसने सितंबर सन 1000 में किया, जब उसने हिंदुस्तान पर अपना पहला हमला किया। इस पहले हमले के बारे में गर्देजी ने लिखा है कि उसने इस हमले में कई किलों को फतह कर लिया। ये किले कौन से थे ये मालूम नहीं, लेकिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि इम्कान ये है कि यह हमला हिंद की तरफ जाने वाले रूट्स और बॉर्डर टाउन्स पर ही हुआ था। महमूद के प्लान्स बहुत एम्बिशियस थे। उसके इन इरादों और हमलों की वजह से हिंदू शाहियों और गजनवियों के दरमियान टेंशन अब एक मर्तबा फिर से बढ़ने लगी थी। इन दोनों के दरमियान एक हिस्ट्री भी थी और फिर कुछ हिंदू शाहियों की लोकेशन ऐसी थी कि उनकी महमूद से लड़ाई लाजमी थी। महमूद ने अगर हिंदुस्तान में एंटर होना था तो सबसे पहले हिंदू शाहियों का इलाका ही था और महमूद को इनसे डील करना जरूरी था। इसलिए महमूद ने हिंदू शाहियों से लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। महमूद के एम्बिशन और हिंदू शाहियों की इलाका वापस लेने की जो ख्वाहिश थी, ये ऐसी थी कि दोनों के दरमियान फिर से एक जंग यकीनी हो गई। अदबुल हरब में लिखा है कि इसी दौरान महमूद ने हिंदू शाही फौज के एक भगोड़े अफसर या जिसने अपनी वफादारी तब्दील कर ली थी, उससे शाहियों की फौज के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। इसका नाम आदिरा अफगान था और ये नरदरी का गवर्नर था। फरिश्ता का लिखना है कि सितंबर सन 1001 में महमूद ने पेशावर की तरफ मार्च शुरू किया। ये एक बड़ी फौज थी जिसपे 15,000 एलीट कैवलरी या घुड़सवार थे। जयपाला को जब इस फौज के आने की खबर मिली तो वो भी मुकाबले के लिए निकला। उसकी फौज में 12,000 घुड़सवार, 30,000 इन्फेंट्री और 300 हाथी थे। इस हिंदू शाही फौज ने पेशावर के किले के करीब पोजीशन संभाली। इस लड़ाई का हाल अल-उतबी ने, जो कि महमूद गजनवी का कोर्ट पोएट और हिस्टोरियन था, उसने तारीख यमनी में बड़ी तफसील के साथ लिखा है। अल-उतबी का कहना है कि महमूद ने पेशावर पहुंचकर शहर के बाहर कैंप लगा लिया। एच.एम. इलियट का किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखना है कि जयपाला उस वक्त लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और वहां पहुंचकर वो री-एनफोर्समेंट्स का इंतजार कर रहा था। 27 नवंबर सन 1001 को जुमेरात के दिन ये दोनों फौजें पेशावर के करीब एक मैदान में आमने सामने हुई। अल-उतबी का कहना है कि जयपाला इस लड़ाई को तूल देना चाहता था क्योंकि वो मजीद फौजों का अभी भी इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ महमूद गजनवी जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहता था। उसे मालूम था कि इन री-इन्फोर्समेंट्स के पहुंचने पर यह जंग उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उसने मैदान जंग में भरपूर फोर्स के साथ जयपाला की फौज पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि दोनों फौजों के दरमियान पेशावर के करीब इस मैदान में घुमसान की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में दोनों फौजें बड़ी ही बहादुरी से लड़ी। ये लड़ाई जिस जगह हुई उस मैदान की एग्जैक्ट लोकेशन के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अदबुल हरब में लिखा है कि ये वो जगह थी जहां पत्थर थे, जिससे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये जगह मौजूदा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के कैंपस के करीब थी। ये लड़ाई सुबह से लेकर दोपहर तक चलती रही। महमूद के पास वक्त कम था, इससे पहले कि जयपाला की री-इन्फोर्समेंट्स पहुंच जाती। फरिश्ता ने लिखा है कि हिंदू शाही फौज के 5,000 सिपाही और 15 हाथी मारे गए। मजमूअल अंसब में सिपाहियों की कैजुअलिटीज का ये नंबर 6,000, जबकि इलियट ने 15,000 लिखा है। जयपाला को वो मदद न आई जिसका वो इंतजार करता रहा। महमूद की फौज के हमले शदीद होते जा रहे थे। अजीजुद्दीन अहमद, जिन्होंने किताब पंजाब और बैरूनी हमलावर लिखी है, उनका यह कहना है कि पेशावर की जंग में पंजाबी अफवाज ने बड़ी बहादुरी से हमलावरों का मुकाबला किया। फिर आखिर मैदान जंग का रुख बदलना शुरू हो गया और महमूद की फौज हावी होने लगी। रफ्ता रफ्ता ये सिचुएशन हिंदू शाही फौज की शिकस्त में बदल गई। हिंदू शाही फौज की सफ़ें बिखर गई और बची हुई फौज मैदान से जाने लगी। महमूद की फौज ने एक बड़ी फतह हासिल कर ली, लेकिन इस जंग के बाद सिर्फ ये फतह अहम नहीं थी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी तवक्को शायद महमूद को खुद भी नहीं थी।
इस जंग में जयापाला और उसके खानदान के 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ यही नहीं, साथ ही एक बड़ा माल महमूद की फौज के हाथ लगा। जयापाला और उसके साथ सरदार इस तरह से कैसे महमूद की फौज के हाथ आ गए, इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। इस जंग के बाद जो कुछ महमूद गजनवी के हाथ लगा, उसके बारे में तारीखदान खुद भी हैरान थे। कहते हैं महमूद की फौज को जो माल मिला वो उनकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा था। 16 कीमती हार इन कैदियों से उतारे गए। इब्न अल-असीर और मजमुअ अल-अंसब में लिखा है कि जयापाला से जो हार उतारा गया, सिर्फ उस हार की कीमत 2 लाख दिनार थी। बाकी हार भी इसी तरह से कीमती थे। 1 लाख लोगों को इस जंग के बाद गुलाम बना लिया गया। इस जंग में जीत के बाद महमूद ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। वो हिंदू शाही डायनेस्टी के मजीद इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था। वो मार्च करता हुंद तक आ पहुंचा, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी का कैपिटल था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह मौजूदा सबाबी शहर के नजदीक और दरिया सिंध के किनारे थी। उसने वहां एक जोरदार हमला करके शहर पर कब्जा कर लिया। हिंदू शाही दस्ते वहां भी शहर को डिफेंड न कर सके और शिकस्त खाने के बाद शहर से निकल गए और पास के पहाड़ों में चले गए। लेकिन इब्न अल-असीर में लिखा है कि महमूद की फौजों ने उनका वहां भी पीछा किया। महमूद की फौज के घुड़सवार आसपास के पहाड़ों में फैल गए और उन्होंने किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस को खत्म करना शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान का लिखना है कि जयापाला की डिफेंस अरेंजमेंट्स बहुत कमजोर साबित हुई। अप्रैल 1002 में महमूद ने वापसी का सफर इख्तियार किया। इस हवाले से कुछ कंफ्यूजन है कि जयापाला और उसके रिश्तेदारों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ क्या हुआ था, उन्हें कैद में कहां रखा गया और उनके साथ क्या सलूक हुआ। कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज का कहना है कि हिंदू शाही राजा को सुल्तान के कैंप के सामने ही एक गुलाम की हैसियत से फरोख्त कर दिया गया। मिनहाजुद्दीन का तबकात नासिरी में कहना है कि जयापाला को खुरासान में मनजजीद या मीरंद में रखा गया और हुक्म दिया गया कि इसे 80 दिरहम में बेच दिया जाए। अब्दुल मालिक असामी ने लिखा है कि सुल्तान उसे गजनी के एक दूर दराज इलाके में ले गया, जहां गुलामों के एक व्यापारी को कहा गया कि वो इसे 80 दिनार में फरोख्त कर दे। फरिश्ता का लिखना है कि वापसी के सफर में महमूद ने जयापाला और बाकी कैदियों को रिहा कर दिया था। मजमुअ अल-अंसब में भी लिखा है कि महमूद और जयापाला के दरमियान उसकी रिहाई के लिए तावान पर बातचीत चलती रही। हिस्टोरियन एच.एम. इलियट ने लिखा है कि जयापाला को जंजीरों में बांधा गया और उसकी और उसके खानदान के लोगों की रिहाई के लिए भारी तावान अदा किया गया। अब्दुल रहमान का लिखना है कि इम्कान है कि मीरान शाह, जो गजनी और बन्नू के दरमियान है, वहां इन गिरफ्तार होने वालों को रिहा कर दिया गया। उसका यह भी कहना है कि 80 दिनार में जयापाला को बेचने वाली बात भी ठीक मालूम नहीं होती। इसीलिए मजमुअ अल-अंसब में लिखा कि जयापाला और महमूद के दरमियान इस रिहाई के लिए बातचीत हुई ताकि तावान की रकम फिक्स की जा सके। जयापाला ने जब महमूद को अपनी रिहाई के लिए पैगाम भेजा तो महमूद ने कहा कि उसे कहो कि वो अपनी रिहाई खुद खरीद ले। यूं जयापाला ने अपनी रिहाई खुद खरीदी। इसके लिए उसने 2,50,000 दिनार और 50 हाथी दिए। अब्दुल रहमान का यह भी कहना है कि महमूद, जिसका मकसद हिंदुस्तान से अपने लिए माल इकट्ठा करना था, मुमकिन नहीं लगता कि जयापाला को वो 80 दिनार के बदले जाने देता। बहरहाल मामला जो भी था, जयापाला को उस वक्त जाने दिया गया, लेकिन उसके बेटे को महमूद ने हॉस्टेज के तौर पर अपने पास रखा। महमूद ने वापसी के सफर में बन्नू के आसपास अफगान कबाइल को भी अपने जेरे असर कर दिया। आनंदपाला के पास उस वक्त दरिया सिंध के पार का इलाका था। वापस आकर जयापाला ने आनंदपाला को लिखा और उसे सारी रूदात बताई और कहा कि वो उसे हाथी भिजवाए। जब ये हाथी महमूद को मिले तो फिर उसने बाकी हॉस्टेजेस को भी रिलीज कर दिया। जो कुछ हुआ था वो जयापाला के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी। जयापाला को लगता था कि उसकी इन पे दर पे शिकस्तों की वजह उसका कोई ऐसा पाप था जिससे उसे मुक्ति सिर्फ आग में कूद जाने से ही मिल सकती थी। वो अपने बेटे आनंदपाला के हक में तख्त से दस्तबरदार हो गया। उसने हुंद, जो कि उस वक्त का कैपिटल था, उसकी दीवार के बाहर आग का एक अलाव जलवाया और खुद इस जलती हुई आग में कूद गया। ये कहाँ हुआ, इस बात पर कुछ बहस है, लेकिन निजामुद्दीन और बदायूनी ने हिंदू शाही का कैपिटल हुंद को ही लिखा है, इसलिए ये मकाम हुंद के बाहर ही था। एक और रवायत यह है कि जयापाला ने लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई और वहां आग में कूद गया था। जुर्बतकानी के मुताबिक हिंदुओं में रवायत थी कि अगर राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो राज के काबिल नहीं रहते थे, इसलिए जयापाला अपने तख्त से दस्तबरदार हो गया। इस जंग के बाद बहुत कुछ बदल गया था। अब महमूद की नजरें हिंदुस्तान पर थी। उसे यहाँ जो कुछ मिला था वो उसकी तवक्कुआत से भी ज्यादा था। उसकी सियासत, ताकत और गजनी एम्पायर की मईशत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। जयापाला से लड़ाई के बाद जो कुछ उसके हाथ लगा था, जो कुछ उसने देख लिया, महमूद को ये सब किस्से अब सच लगने लगे थे और उसने इसीलिए आने वाले सालों में बार बार यहाँ का रुख करने का फैसला कर लिया।
दूसरी तरफ हिंदू शाही जो एक वक्त में बड़ी ताकत समझे जाते थे, इस तरह से पे दर पे शिकस्तों के बाद उनकी कमर टूट गई थी। राजपूत कन्फेडरेसी में भी अब उनकी पोजीशन कमजोर हो गई थी। वो एक बॉर्डर स्टेट थे और महमूद के हमलों के रास्ते में थे, इसलिए अब उन्हें बार बार इसका सामना करना था। ऐसा लगता था कि जयपाला के साथ हुंद भी आग में कूद गया, क्योंकि इसके बाद हिंदू शाहियों ने कैपिटल को भी हुंद से नंदना मूव कर दिया। दरियाए सिंध से पार हिंदू शाही अब अपना इलाका खो चुके और पेशावर जैसा शहर भी उनके हाथ से निकल चुका था। जयपाला की शिकस्तों के बाद अब उनके लिए अपनी रेपुटेशन को बहाल करना बड़ा जरूरी था, लेकिन इसके लिए उन्हें अब अपने इलाके वापस लेने थे। आने वाले सालों में यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला नहीं था, बल्कि बढ़ने वाला था। राजपूत इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे, लेकिन उन्हें कुछ मुख्तलिफ करना था, वरना महमूद के हमले उन्हें हर साल कमजोर से कमजोर करते जाते। गजनवियों और हिंदू शाहियों के इस कॉन्फ्लिक्ट में आगे क्या हुआ, ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।